Good morning, everyone. Choose the correct synonym for the word given below. Treason. Disloyalty. Treason का मतलब होता है treachery और disloyalty. Disloyalty, a person who is not loyal. धोखा देना, विश्वासघात करना. ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात. डिसलॉयल्टी, कोई भी व्यक्ति जो कि लॉयल नहीं, विश्वासघात किया और धोखा दिया हो. Hence option A would be correct. What does the following sentence mean? Pandit Jawaharlal Nehru lived to be a wisdom lark. ये ऑप्शन सही होगा. नेहरू जी woke up early in the morning. Phrase up with a lark means getting up or wake up early in the morning. Lark is a bird, hence option A would be correct. Up with a lark, lark is a bird, and up with the lark means wake up early in the morning. Fine. Synonym of the word casual. Casual cox. ये ऑप्शन सही means to urge or cox. Hence option A would be correct. To urge, which is not in quality of a good handwriting. Absence of uniformity in the size of letter. तो size of letters जो कि यूनिफॉर्मिटी न रखते हों. Absence of uniformity in the size of letters is a bad quality of handwriting. Hence option D would be correct. Legibility, distinctiveness, spacing, the absence of uniformity in the size of letters. Remedial teaching involves A. Teaching and testing. Remedial teaching involves teaching and testing for the constant improvement in teaching and learning. Remedial teaching involves teaching and testing. तो रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए जहाँ पर कि उपचार किया जा सके. जो कमियाँ, गलतियाँ, खामियाँ पाई गई हैं उनको सुधारा जा सके. रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व टीचिंग एंड टेस्टिंग फॉर कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग. द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट was proposed by Indian Parliament on 4th of August 2009. When did this law come into effect in India except the state of Jammu and Kashmir? See, 1st of April 2010. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 came into effect on 1st of April 2010 in India except Jammu and Kashmir. Hence option C would be correct. तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए जो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ वो 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को. जम्मू कश्मीर को छोड़कर बच्चों को ये राइट दिया गया कि सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी. राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. फाइन, राइट दिया गया. चूज़ द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ रोट लर्निंग? तो रोट लर्निंग क्या है, चलिए देखते हैं. रोट लर्निंग इज एन मैकेनिकल एंड हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली. रोट लर्निंग एक मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग है विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली. तो समझ ना भी हो तो भी रोट लर्निंग इज एन मैकेनिकल हैबिचुअल लर्निंग है. जबकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही प्रॉपरली. चूज़
the most appropriate meaning of the given below Fabian policy. Policy of using gradual reform. तो पॉलिसी जिससे कि ग्रेजुअल रिफॉर्म हो रहा हो. Fabian policy was followed by an association of British socialists 1884, advocating democratic socialism by gradual reform. Hence, option D would be correct. Fine. तो पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म, ये पॉलिसी है जिससे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे रिफॉर्म होता है, सुधार होता है. व्हाट इज़ द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागॉजिक? पेडागॉजी देखते हैं. द नाउन फॉर्म ऑफ पेडागॉजिक इज पेडागॉजी. हेंस द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव पेडागॉजिक. पेडागॉजिक का नाउन फॉर्म क्या है? पेडागॉजी. हेंस बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. सी, government and private school are equally good. There is a huge gap between the quality of education in the government and private school. This is the bitter truth of the school education in India. Hence, the option C would be correct. Name of the poet of the poem The Solitary Reaper. William वर्ड्सवर्थ लिखा है फ़िलहाल इसमें. तो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा हुआ है. सॉलिटरी रीपर बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ. हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. हाउ मैनी वर्ड्स आर wrongly spelled in the sentence below? कितने सेंटेंस wrongly spelled हैं? The wrongly spelled words are wrapped. तो ये रैप की सही स्पेलिंग ये है. बैंडेज की सही स्पेलिंग ये है. एज बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. टू रॉन्गली स्पेल्ड है, स्पेलिंग इनकी गलत लिखी हुई है. रैप्ड और बैंडेज. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू आर yawning a lot. You are yawning a lot. The correct phrase to complete the sentence is you are probably sleeping because you are yawning a lot. Hence option A would be correct. Fine. King Lear was written by William Shakespeare. King Lear is a tragedy by William Shakespeare. Hence, option B would be correct. Identify the correct reported form of the given sentence. D. My friend insisted that I must accept that gift. मेरे फ्रेंड ने इंसिस्ट किया कि मुझे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. द करेक्ट सेंटेंस इन द रिपोर्टेड फ्रॉम द थर्ड पर्सन वुड बी माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट. डी ऑप्शन आपका सही होगा. There is an emphasis, so insisted is used, and this is the change into that. Hence, option D would be correct. My friend said you must accept this gift. तो correct the reported form of the given sentence. तो हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना था यहाँ पर. माई फ्रेंड आस्क्ड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट. माई फ्रेंड सेड दैट यू मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट. माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट. आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट. ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. द गिफ्ट, एक्सेप्ट द गिफ्ट. माई फ्रेंड टोल्ड मी, तो कहीं टोल्ड नहीं है. रिक्वेस्टेड दैट, मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी. रिक्वेस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट. तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा. माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट. अब देखिए, हिंदी में आप समझने की कोशिश करिए. जब कोई भी व्यक्ति आपको कुछ दे रहा होता है तो आप मना करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स वहीं पर उसको इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो लोग ज़ोर देकर कहेंगे कि बेटा ले लो.
तो इसी तरह से कि माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट, मेरी फ्रेंड ने ज़ोर देकर कहा, मुझ पर थोड़ा सा फोर्सफुली मुझे कहा, मुझे इंसिस्ट किया, मुझ पर जोर दिया और मुझे उसके लिए प्रेरित किया और मुझसे कहा कि वो गिफ्ट ले लो। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, माई फ्रेंड सैड। इस सेंटेंस को ये रिपोर्टेड फॉर्म में करेक्ट द रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, रिपोर्टेड फॉर्म को करेक्ट करना था हमें। माई फ्रेंड सैड दैट, माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट। जैसे कोई हमारा रिश्तेदार भी आता है तो हम पैसा हमें दिया जाता है, हम लेने से मना करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स कहते हैं या कोई बगल में हमारे खड़ा आता है, वो इंसिस्ट करता है, वो जोर डालता है इस पर कि अरे नहीं ले लो, तुम्हें ले लेना चाहिए इस गिफ्ट को। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। वर्ब ऑफ एन alternation, fine. C, alternate. Alternate is a verb from the noun alternation. तो alternate is verb है जो कि noun से बना है, is a verb from the noun alternation. Hence the C option would be correct. तो इसमें verb पूछा है, verb of alternation, तो verb ये हो जाएगा alternate. Certain part of the following sentence have been underlined and marked. Select the part containing an error. तो आप अब सभी लोग इन सेंटेंसेस को देख लीजिए। बाकी मैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, मैं वाइट बोर्ड पर भी आपको ये सारे सेंटेंस एक्सप्लेन कर दूँगी फर्दर वीडियो में, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है विद फुल एक्सप्लेनेशन। फाइन, वैसे यहाँ भी एक्सप्लेन हो जा रहा है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। Certain part of the following sentence have been underlined and marked. Select the part of containing an error. Fine. This is not the first time I am hearing of, and your is subordination. अब देखिए करेक्ट सेंटेंस। In the part use I hear of instead of I am hearing of. I am hearing of, तो सी आपको यहाँ पर सही करना है, I am hearing of. Fine. In the given two sentences, select from the answer choice of the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of both the sentences. The organization was established at the beginning of the century. The little girl could not twist the gap of the bottles. Fine. B option. The word break can be used in place of beginning. The word break can be used. The organization was established at the break of the century. Fine. And the first sentence and the twist in the second sentence. And the twist in the second sentence. The little girl could not break the cap ऑफ द बटल। तो यहाँ पर दोनों जगह ब्रेक यूज़ हो जाएगा और वो सुटेबल रहेगा और सही सेंटेंस फॉर्म करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज़ वन ऑफ द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सिक्सेस एंड सेवन्स। ए, स्कैटर्ड। एज सिक्सेस एंड सेवन मीन्स इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन और स्कैटर्ड, मतलब टोटल कंफ्यूज है कोई व्यक्ति और स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज़न। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।